तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन दैट वी सॉ वाज क्वेश्चन नंबर 7 में का 12. 7 सब पर 12 is done. It's on page number 30. So this is the last question that we solved. ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट सॉल्व किया था. अब आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 8 में से मैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सो टू टेल यू आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन 1 को छोड़ के बाकी सब सॉल्व करने वाला हूँ मैं. ऑल. लेट्स बिगिन विद दैट नाउ. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Basically this is exercise 1.2. इसमें से हमारा है क्वेश्चन नंबर 8. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. और उसमें से है 8 में का 2. अब ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक टिपिकल टाइप के अंदर आते हैं. जब व्हाट पर्टिकुलर टाइप, क्या टाइप है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. 8 में का 2 √3 y is equal to this. I have to solve this now. So as we know that I will try to put it in the form. मैं उसको कौन से फॉर्म में लिखना चाहूँगा. मैं उसको लिखना चाहूँगा इन द फॉर्म y is equal to cos inverse of cos of something something, so that it will become something something. I want to put it in this form. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे. I'll first of all separate out this thing. I'll write this as y is equal to cos inverse of, मैं इसको लिखूंगा cos x into half minus sin x cos x into √3/2 rather, not half, √3/2 and sin x into half. ऐसे. Well, this is cos of क्या ये π/6 and this is sin of π/6. तो ये जो है ये क्या बन जाएगा. दिस इज गोइंग टू बिकम cos a cos b minus sin a sin b, which is actually equal to cos of a plus b. तो ये क्या बन जाएगा. that will become y is equal to cos inverse of cos of x plus π/6, and that is equal to cos inverse of cos of bracket is equal to bracket, that means x plus π/6, x plus π/6, and therefore dy by dx is equal to 1 is the answer. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Hello, is this okay? अगला क्वेश्चन. इज दैट अंडरस्टूड. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसमें भी वैसे ही करना है. थर्ड क्वेश्चन. आप बताइए. साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग. इजी है ये एक्चुअली. ये बहुत इजी है. आई थिंक आई शुड स्किप दिस क्वेश्चन. सेम टाइप है. मुझे इसमें लिखना है इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग. क्या होगा वो अगर मुझे ऐसा लिखना है तो. आई थिंक यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क. 8 में से 3, क्योंकि ये जो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा ये 1/√2 इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ रूट एक्स. ठीक है. सो आई राइट दिस एज दैट इज इक्वल टू, इसमें आई राइट दिस हाफ एज साइन ऑफ π/4 और ये 1/√2, दिस 1/√2 साइन ऑफ π/4 और ये 1/√2 का cos ऑफ π/4, so that this is becoming sin a cos b plus cos a sin b, and that is equal to sin of a plus b. तो ये क्या बन जाएगा. y is equal to
sine inverse of sine of pi by 4 plus root x. Okay, now sine inverse of sine of something something is something something pi by 4 plus root x, and therefore differentiating we get dy by dx is equal to pi by 4 का derivative 0 and root x का होगा 1 upon 2 root x, and that's the answer. Is this clear to all? आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर सही है. Any doubts about that? Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला वाला आप मुझे बता सकते हो? Would you like to answer it? Hmm. 8 make a 4. I want to arrange it in the form cos inverse of cos of something something. ऐसा मुझे इसको लिखना है. पहले तो मैं इसको सेपरेट करूंगा. y is equal to cos inverse of, I'll write this as 3 by 5 into cos 3x minus 4 by 5 into sin 3x. So यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, I have separated this. इसको सेपरेट करने के बाद ये जो 3 4 5 है, there is some connection between this 3 4 5. Can you tell me what is that connection between 3 4 and 5? 3 4 5 में क्या connection है? The connection in 3 4 5 is that, yeah, I'll construct a right angle triangle here like this. ये एक right angle triangle है. इसमें let me say that this angle is alpha. This side is 3. This side, this is the right angle triangle 4 and 5. So can you tell me from this triangle what is cos alpha is equal to? Adjacent side upon hypotenuse, that is 3 by 5. Can you tell me what is sin alpha is equal to? Sin alpha is equal to opposite side upon hypotenuse 4 upon 5. जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, deliberately मैंने इसको ऐसे चूज किया है. So this becomes cos alpha and this becomes sin of alpha, and alpha is a constant in this case, and this is very much looking like cos A cos B minus sin A sin B, and that is actually equal to cos of A plus B. Okay, so ये क्या बन जाएगा? Y is equal to cos inverse of cos A cos B minus sin A sin B, that is cos of 3x plus alpha, and cos inverse of cos of something something is same thing. So this is equal to cos of 3x plus alpha, and now I'll differentiate this. So what will be dy by dx is equal to alpha is a constant here, so the answer is 3. I hope this is clear to you. Is this okay? All right. So I'll go for the next question now. Next question is question number 5. Question number 8 subpart 5. 8 में का 5. अब इसमें भी यहाँ पर भी एक ट्रायंगल तैयार हो सकता है, बिकॉज 3 2 and root 13 दिस विल फॉर्म पाइथागोरस. ये जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करेगा वो, आई वुड ट्राई टू अरेंज इट इन द फॉर्म cos इनवर्स ऑफ cos of something something, cos inverse of cos of something something, that will be something something. तो इसका मतलब है ये जो रूट अपन इफ आई रीअरेंज इट लाइक y is equal to cos inverse of, अगर मुझे इसको लिखना है 3 upon root 13, this is cos of e raised to x plus 2 upon root 13, which is sin of e raised to x. Okay, तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा in the form of cos alpha, and I have to write this as sin alpha, so that this becomes cos A cos B
प्लस साइन ए साइन बी, प्लस नहीं सॉरी माइनस कॉस ए कॉस बी, हाँ प्लस साइन ए साइन बी, एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा ये बन जाएगा। सो सो दिस विल, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू प्रिपेयर अ राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे तैयार करना चाहूँगा इस तरह का। सो दिस इज अल्फा, तो अल्फा का ये होगा 3 और ये होगा 2, एंड दिस इज 3, दिस इज 9 प्लस 4 13, सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 30। नाउ व्हाट इज cos अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 13 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 13 एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये अब मुझे इसमें cos ऑफ a माइनस बी, तो आप a किसको बोलोगे, b किसको बोलोगे, आप इसमें से a किसको बोलोगे और b किसको बोलोगे, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, इजंट इट। सो कैसे करेंगे यहाँ पे, सो आई से ये जो कांस्टेंट है उसको मैं बाद में ले लूंगा, सो आई कॉल दिस एज a and this is b, isn't it? So this will become y is equal to cos inverse of cos of e raised to x minus alpha, ऐसा बनेगा, that is equal to e raised to x minus alpha, and therefore dy by dx is equal to e raised to x. Okay, ठीक है, so this is what we get there. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is cosec inverse of cosec inverse, so this is 8 मेगा 6 cosec इनवर्स। यहाँ पर मैं कोई फॉर्मूला एक यूज करूंगा कि भाई cosec इनवर्स ऑफ a अपॉन b, रेसिप्रोकल रिलेशंस, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ b अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ b अपॉन a। सो बेसिकली आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनवर्स ऑफ, I'll have to take the reciprocal of this, this is 6 sine of 2 raised to x minus 8 cos of 2 raised to x, whole thing divided by 10। इस 10 को भी मैं एक्चुअली सेपरेट करना चाहूँगा, दिस इज 6 अपॉन 10 एंड 8 अपॉन 10। 6 अपॉन 10 का मतलब है एक्चुअली 3 जा 5 जा 4 जा and 5 जा। So I want to arrange it in the form sin inverse of sin of something something, मतलब ये मेरे लिए मुझे अरेंज करना जरूरी है कि दिस इज इक्वल टू cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू sin अल्फा, ये sin अल्फा और cos अल्फा है, ऐसा बनेगा ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करूंगा इस तरह से। I'll prepare a right angle triangle over here, जिसमें दिस इज अल्फा, cos मतलब 3/5 एंड sin अल्फा मतलब 4/5, डन। अब मुझे इसको इस तरह से सॉल्व करना है, सो दिस विल बिकम sin inverse of sin 2 raised to x into cos of alpha minus cos of 2 raised to x into sin alpha, that is equal to sin inverse of sin of 2 raised to x minus alpha, and that is equal to 2 raised to x minus alpha y, and therefore dy by dx
इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स log 2, 2 रेज टू एक्स log 2, ये बन गया. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये चीज है अभी अपने को. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा आपको एक बार बता दूं. इन क्वेश्चन नंबर 9 आई विल बी सॉल्विंग. ये है 9th क्वेश्चन. तो इसमें मैं सॉल्व करूंगा 3 4 3 4 6 8 9 10 12. 10 में का 2 3 4 6. आप मार्क कर लीजिएगा अपने अपने टेक्स्ट बुक में. 8 9. दिस क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व. बाकी आपके लिए होमवर्क है. ठीक है. तो यहाँ ये वाले जो है वो सेम टाइप के हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा. सेम टाइप के हैं तो आप कर सकते हो. वेल लेट अस प्रोसीड नाउ. तो इसमें दिस क्वेश्चन, स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन है. एवरीवेयर. अब ये जो क्वेश्चन है दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन थिंग. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 9. तो 9th वाला जो पार्ट है इट इज बेस्ड ऑन substitution. It is based on substitution. It is based on substitution. Substitution माने मतलब मुझे इसको लिखना है ऑफ टाइप साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग. तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, देखिए कौन सा फॉर्मूला. अब ये देखिए साइन ऑफ व्हाट. मेरे ख्याल से यहाँ पर एक फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. द फॉर्मूला विच विल बी यूजफुल हियर इज, यहाँ पर साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला मेरे सामने आया है मेरी नजरों में. 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर ही आएगा. तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन जो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए नजर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड देयरफॉर व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू, ये tan इधर चला जाएगा, दैट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. ये एक पर्टिकुलर टाइप है, देखिए गौर से. सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x. अब इस सब्स्टिट्यूशन को हम सामने अगर रखते हैं, इफ आई मेक दिस सब्स्टिट्यूशन, हाउ इज दिस क्वेश्चन गोइंग टू चेंज? द क्वेश्चन इज गोइंग टू y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. Okay, that is equal to sine inverse of sine of 2 theta, and sine inverse of sine of something something is same thing, but theta is equal to tan inverse of x. So this is 2 times tan inverse of x, and therefore what is dy by dx is equal to 2 is a constant. Tan inverse of x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 1 plus x square, and therefore the answer is 2 upon 1 plus x square. Well, this is the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Any doubts about that? Any doubts about that? That's the answer actually. ये है क्वेश्चन नंबर 9 में का 3. एक्सरसाइज 1.2 9 में का 3. 9 सब पार्ट 3. 9 में का 3. 1 माइनस, ये गलत है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए. दिस हैज टू बी प्लस हियर. ये प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए. दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर. इज दिस ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
So that was question number 9 sub part 3. Now I'll go for the next one. This is 9 mecha 4. Sin inverse of this. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा सब्स्टिट्यूट करने के लायक, बताइए. If I'll make a substitution, put x is equal to sin theta. Therefore theta क्या बन जाएगा? Sin inverse of x. Now what is this going to become? This will become y is equal to sin inverse of 2 times sin theta into स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? into square root of 1 minus sin square theta. Now that is equal to sin inverse of 2 sin theta cos theta, and that is equal to sin inverse of sin 2 theta, and therefore y is equal to 2 theta. Therefore 2 times theta की जगह पर आएगा sin inverse of x, and therefore what will be dy by dx is equal to, it is 2 upon square root of 1 minus x square. Is this okay? 2 upon square root of 1 minus x square. तो ये आंसर आएगा अपना. समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, 9 में का 6. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. पहले तो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ. ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में, सीईटी में वगैरह पूछे गए हैं. अब देखिए इसमें क्या करेंगे. आई राइट दिस एज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को लिखूंगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, और नीचे भी वैसे ही करेंगे ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स. ठीक है, ऐसे. नाउ दैट विल बिकम y is equal to cos inverse of 2 e raised to x minus 1 upon 2 e raised to x plus 1. इस तरह का बन जाएगा ये. ठीक है, ओके. एनी डाउट सो फार? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक? हेलो. इसमें cos इनवर्स ऑफ इसमें से आप एक अगर माइनस साइन बाहर कॉमन निकालिए तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ माइनस साइन इफ आई टेक आउट, इसमें को 1 माइनस 2 e रेज टू एक्स. यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला, एंड दिस इज 1 प्लस 2 e रेज टू एक्स. अब क्या होगा? एक सेकेंड ना, ई रेस टू 2 नहीं, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर आएगा रे. 2 क्यों आएगा यहाँ पर? दिस हैज टू बी स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर बनेगा. दिस इज गोइंग टू बी ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर आएगा ना, एंड दिस इज आल्सो ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालने के बाद ये आएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्यों नहीं जा रहा है यार? ये आएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. इस तरह का बन जाएगा ये. ठीक है, माइनस साइन मैंने बाहर निकाला.
Now this is resembling with, there is one formula for, because I want to arrange in the form cos of cos inverse something something. तो इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं क्या, e raised to minus 6, नहीं, ओके कोई नहीं. cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है. cos 2 थीटा is 1 minus tan square theta अपॉन 1 प्लस tan square theta. तो इधर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा, पुट e raised to x as tan theta. तो ये क्या बन जाएगा, and therefore theta is equal to tan inverse of e raised to x. Well, I'll make this substitution here. Y is equal to cos inverse of, this will become 1 minus 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है. Now that is cos 2 theta, so this is cos inverse of minus cos 2 theta. Now there is one more formula. What is cos of, you know, ASTC ना, ASTC, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है. Now what is cos of pi minus theta is equal to cos theta minus cos theta. तो ये माइनस जो है उसको मैं, I'll take care of that by using this formula. So this will become cos of pi minus 2 theta, right? Now cos inverse of cos of something something is something something, I mean same thing same thing. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर. Now let's substitute for theta. Theta is equal to tan inverse of e raised to x. So it's become y is equal to pi minus 2 times tan inverse of e raised to x. Now that will become, therefore what will be dy by dx? dy by dx is given by pi का डेरिवेटिव 0 होगा, minus 2 times 1 upon 1 plus bracket square into d by dx of bracket. This bracket is e raised to x. This bracket is e raised to x. That will be, this will become minus 2 times e raised to x upon 1 plus e raised to x bracket ka square is e raised to 2x, and that is the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Hello, any doubts about that? Yes, sir. Yeah, this is question number, ये है question number कौन सा है, ये 9 में का 6. Let's cross check the answer here. 9 subpart 6. This is the question number 9 subpart 6. ये रहा. Alright, I'll go for the next question now. Question number 9 subpart 8. 9 में का 8. 9 subpart 8. साइन इनवर्स याद रखिए, अपने दिमाग में होना चाहिए. आई शुड अरेंज दिस एज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग. तो ऐसा ये फॉर्मूला होना चाहिए. तो ये साइन इनवर्स किसके साथ मैच कर रहा है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. तो देखते हैं. therefore y is equal to sin इनवर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं स्प्लिट करके अगर लिखूंगा तो ये बन जाएगा, देखिए ये जो 4 रेज टू एक्स है ना, आई लाइक टू राइट दिस एज न्यूमरेटर जो है, दिस न्यूमरेटर आई राइट दिस एज 4 raised to x into 4 raised to half, correct? That is equal to 2 raised to 2 bracket raised to x, and 4 raised to half is simply 2. Now that is equal to 2 raised to 4x plus
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर मुझे फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में होगा 2 tan थीटा, नहीं, हाँ 2 tan थीटा, नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है, भला भलता कुछ है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? 9 2 raised to 2x, 2 into 2 raised to 2x, या नो, इसको मैं लिखूंगा 2 raised to 2x into 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में मैं बोलूंगा इसको लिखना है, ये जो है ना 2 raised to 4x, डिनोमिनेटर में जो 2 raised to 4x है, इसे मैं लिखूंगा 2 raised to 2x ब्रैकेट raised to 2, इस तरह से लिखूंगा 2 raised to 2x ब्रैकेट raised to 2। अब ये जो डिनोमिनेटर जो आएगा ना, टोटल जो फंक्शन आएगा वो किस प्रकार रहेगा, चलिए देखते हैं। दिस इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को अभी हम? दिस इज रिटन एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 2 रेज टू 2x होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू 4x को मैं लिखूंगा 2 रेज टू 2x ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट 2 रेज टू 2x 2 raised to 2x is equal to tan theta, and therefore theta is equal to tan inverse of 2 raised to 2x। ये बन जाएगा y is equal to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। Now that is equal to sin inverse of sin of, because this is equal to, ये कौन सा फॉर्मूला है, this is equal to sin 2 theta, sin inverse of sin 2 theta, and that is equal to 2 theta। Now that is equal to 2 times tan inverse of ब्रैकेट 2 रेज टू 2x। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए, 2 इज अ कांस्टेंट, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ओके। नाउ दिस ब्रैकेट इज 2 रेज टू 2x, ब्रैकेट इज 2 रेज टू 2x, therefore this is 2 upon 1 plus, this is 2 raised to 4x actually, 2 raised to 4x into, now this is again 2 raised to bracket, 2 raised to ब्रैकेट जिसका डेरिवेटिव आएगा 2 raised to ब्रैकेट log 2 into डिवाइडेड बाय dx ऑफ ब्रैकेट। अब मुझे बताइए क्या आएगा ये, तो दिस विल बिकम 2 raised to, क्या है ये, 2x है, 2 raised to 2x है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव लिखना है मुझे। now this will become 2 times 2 raised to 2x into log 2 into, इसका डेरिवेटिव आएगा सिंपली 2, and whole thing divided by 1 plus 2 raised to 4x। now that is equal to, this will become 2 log 2, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मुझे लिखना पड़ेगा 2 raised to 2 to the 4, so 4 into 2 raised to x log 2 divided by 1 plus 2 raised to 4x, ये बन जाएगा।
नाउ द आंसर विल बी इन दैट फॉर्म ओनली, या किसी अलग फॉर्म में भी हो सकता है आंसर. सो 2 इंटू ऐसा आ गया आंसर. ओके फाइन. तो उसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर को. सेम आंसर इन द डिफरेंट फॉर्म दे हैव गिवन हियर. दो अलग अलग फॉर्म में आंसर दिए हैं उन्होंने. लेट्स सी व्हाट दिस आंसर गिवन बाय देम. ये आंसर दिया उन्होंने. अब ये जो है 2 रेस टू व्हाट इज दैट 4x, इसे ये जो 2 रेस टू 4x है इसको मैं 2 रेस टू 2 ब्रैकेट रेस टू x दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू, एक मिनट, 2x, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ. 2 टू द 4, so that will be nothing but 4 raised to, that is, are you understanding? Please check whether this is clear to you all. अलग अलग लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज कर रहे हैं. 2 रेस टू, बिकॉज यू नो a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू mn, ऐसा होता है ना. तो इस 4 को मैं स्प्लिट करूंगा 2 टू जा, और फिर ये 2 टू जा 4 होगा, 4 रेस टू 2x हो जाएगा ये, जो कि रिक्वायर्ड आंसर के फॉर्मेट में. अदरवाइज आप इसको ऐसा छोड़ेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स फुल क्रेडिट, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. और इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसमें से ये जो 4 है इसमें से एक 2 जो है वो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, तो ये 2 रेस टू 2 हो जाएगा. और ये जो है इसको मैं लिखूंगा 4 रेस टू हाफ. सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो मैंने किया है वही चीज दोबारा यूज करूंगा कि भाई न्यूमरेटर विच इज 4 रेस टू x प्लस हाफ को मैंने 2 इंटू 2 रेस टू 2x लिखा है. तो ये जो 2 इंटू 2 रेस टू 2x होगा इसको मैं गिवन फॉर्म में लिख सकता हूँ. 2 इंटू 2 रेस टू x इज एक्चुअली इक्वल टू 4 रेस टू x प्लस हाफ, गिवन आंसर के फॉर्म में. इवन दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, लेट मी टेल यू, but I'm just trying to tell you कि this answer and the given answer is not different. So this will become 4 raised to x plus half into log, ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा ये, and whole thing divided by 1 plus ये 2 raised to 4x को मैं लिखना चाहूँगा 4 raised to 2x, 4 raised to 2x. So it's the same as the given answer. आप लोग इसको ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, you will be getting full marks full credit. MCQs में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो. I hope this is clear to you all. I hope this is clear. I Yes, hope this sir. is clear. Yep. मुझे लगता है